Hello dear students, in this video we will solve question number 26, 27, 28, 29 and 30 from the new CBSE sample paper of class 10. We have already completed section A and B from this sample paper and now it's time for section C. So let's start. The question is given that root 3 is irrational and we need to prove that 5 plus 2 root 3 is irrational. Okay, to solve these type of questions we need to follow a fixed process. So we need to assume that 5 plus 2 root 3 is rational number. Okay, is rational. And now what is rational number? That we can write in the form of P by Q is equals to, we can write in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are both are integers. So now you can say that 2 root 3 is equals to P by Q minus 5, और we can say root 3 is equals to, ओके इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है. सो 2 root 3 is equals to P minus 5Q by Q. Okay, and now root 3 is equals to P minus 5Q by 2Q. And now see here, root 3 is given, that is irrational, and here P is an integer that we have assumed already, 5 is also an integer, Q is an integer, 2 is an integer, all are integers. So we can say that RHS of this equation is, suppose that, so RHS, that is RHS of this equation is rational because all the terms are integer. RHS of the above equation is rational and LHS is irrational, that is given to us. Okay, root 3 irrational है, ये हमें given है पहले से, that is irrational. Is that possible? एक तरफ irrational है और दूसरी तरफ rational number, तो ये possible नहीं है. यहाँ पे हमें लिखना होगा this is not possible, this is not possible, and this contradiction has arisen due to our wrong assumption. हमने assume क्या किया था, यहाँ पे देखिए, assume हमने किया था 5 plus 2 root 3 is rational, ये हमने assume किया था यहीं, इसलिए हमारा जो ये contradiction arise हुआ है इसी वजह से हुआ है. तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यही होगा कि this contradiction has arisen due to our wrong assumption. Okay, that is 5 plus 2 root 3, that is 5 plus 2 root 3. Okay, 5 plus 2 root 3 is rational, हमने ये assume किया था. Hence we can say 5 plus 2 root 3 is irrational. हमने ये assume कर लिया था, 5 plus 2 root 3 rational assume कर लिया था, और इसी वजह से हमें देखना पड़ा कि एक इक्वेशन मुझे मिला जिसके LHS में एक irrational नंबर था और RHS में एक rational नंबर था. ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से. हमने यहाँ पे लिख दिया. ये सेंटेंस आपको पूरा एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, इसी सेंटेंस में आपको मार्क्स मिलेंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27.
If zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in the value of the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3, then find the value of p and q. So let me erase it first. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो ज़ीरोज़ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो ज़ीरोज़ है वो डबल है किसका, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का। तो आपको पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, इसका ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करके उसको फाइंड करेंगे। प्रोसेस आपका सही होगा, ठीक है, प्रोसेस वो भी सही होगा और आंसर भी मैच करेगा, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखिए कैसे इसको फाइंड करना है। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सपोज इसका ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, ठीक, एंड वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड that is zeros of the polynomial and coefficient of the polynomial, that is minus b by a, and we also know alpha into beta that is equals to c by a। अब यहाँ पे b कितना है -5, c कितना है -3, ठीक है। इस माइनस को छोड़ना नहीं है, आपका एक छोटा सा मिस्टेक भी इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा, ठीक है। So if I say the polynomials, the zeros of this polynomial 2x square minus 5x minus 3 is alpha beta, so we need to assume that the polynomial of the x square plus px plus q is 2 alpha and 2 beta or not. Here it is already given that are double in the value of the zeros of this polynomial, मतलब जो भी इस polynomial का वैल्यू आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का, जो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा, जो ज़ीरोज़ का वैल्यू आएगा वो डबल होगा किसका, इसका, ठीक है। सो वी कैन से दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज़ बी हियर -5, सो -5 बाय ए, व्हाट इज़ ए 2, ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 5/2। सो नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा, that is alpha into beta is c by a, what is c here -3 and what is a, that is 2। अब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा था, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो ज़ीरोज़ है वो डबल होगा इससे, तो हम लोग लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर ये अल्फ़ा है तो इसका 2 अल्फ़ा होना चाहिए, और अगर इसका सेकेंड ज़ीरो जो है वो बीटा है तो इसका 2 बीटा होना चाहिए। सो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दैट इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल्स टू 5/2, 2 into 5/2 that is 2 will be cancel out, that is 5, means 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 5 आ गया। और 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू कितना आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू कितना है, इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू है p, c का वैल्यू है q और a का वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ये कितना था 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसका मतलब कितना होता है b बाई ए, सॉरी माइनस b बाई ए, मतलब माइनस p बाई 1 मीन्स माइनस p, दैट इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू -5, एंड ऑल्सो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा is equals to c by a, what is c, that is q, and what is a, that is 1, so 4 alpha beta is equals to q, and what is the value of alpha beta, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमने निकाला है -3/2, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको सिंपली, दैट इज़ 4 इंटू -3/2 इज इक्वल्स टू q,
So 2 will be 2 2s are 4 and q is equals to 3 into 2 that is -6। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बोर्ड एग्ज़ाम में फिक्स होता है पर ईयर, मतलब रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देयर आर टू क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज एन इंटरनल चॉइस इज गिवन टू यू। ओके, आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। A train is covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाता है, तो it would have taken 4 hours less than the scheduled time. उसे 4 घंटे कम लगते हैं। अगर 6 किलोमीटर फास्टर चलता है तो ट्रेन को पहुंचने में डेस्टिनेशन तक 4 घंटे उसको कम लगते हैं। एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर 6 घंटे पर किलोमीटर आवर स्लोअर चलता है तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस you need to remember one thing always, that in time speed distance questions distance is always constant। डिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, आप टाइम बढ़ा दो या घटा दो, स्पीड बढ़ा दो या घटा दो, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। आप कानपुर से दिल्ली जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाओ या बहुत कम स्पीड में जाओ, बहुत टाइम लेकर के जाओ या फिर कम टाइम लेकर के जाओ, कानपुर से दिल्ली का डिस्टेंस कभी भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। सो डिस्टेंस आपको हमेशा कांस्टेंट रखना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट स्पीड इक्वल टू x and time is y। ओके, सो अगर मैं नॉर्मल स्पीड और टाइम को x y फाइंड करूँगा तो अज्यूम करूँगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ आई इंक्रीज द स्पीड, okay, if I increase the speed that is 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less, means x into okay x plus 6, मतलब स्पीड में हमने बढ़ा दिया है इसको स्पीड को, और टाइम को हमने घटा दिया कितना, 4 आवर लेस। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम घट जाएगा। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, x इंटू वाई, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यहाँ भी x इंटू वाई, यहाँ भी x इंटू वाई। एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट अ न्यू लीनियर इक्वेशन। सो सॉल्व इट। ओके, सो ओके, हमने यहाँ पे t नहीं y एज्यूम किया है ना, इसको y एज्यूम किया हमने टाइम को, इसलिए हम यहाँ पे y लिख देते हैं। ओके, सो x इंटू वाई, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x, ओके, माइनस 24 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। नाउ एक्स वाई विल गेट कैंसिल आउट एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक 4 एज कॉमन, ओके सॉरी 2 एज कॉमन, सो वी कैन राइट 3y माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमने 2 कॉमन लेकर के 0 से इक्वेट कर दिया तो वो 0 हो गया। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। एंड नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ आई डिक्रीज द स्पीड दैट इज रिटन हेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर। ऑब्वियसली स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हेयर इफ़ आई राइट x माइनस 6, मतलब हमने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर हमने घटा दिया है, तो टाइम कितना लगेगा, y ज़्यादा लगेगा टाइम, y प्लस 6, और डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आता है, और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। सो x इंटू वाई। नाउ अगेन सॉल्व इट, एक्स वाई माइनस 6y,
okay, plus 6x minus 36 is equals to xy. Again xy will get cancelled out and the new equation is 6x minus 6y minus 36 equal to 0. Now take 6 as common, so we will get x minus y minus 6 equal to 0. This is our second equation, equation 2. Now solving by for equation 1 and 2, we will get our answer. So this is our first equation and this is our second equation. ये 90% काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो आपका 90% नहीं 95 भी कह सकते हो, 95% काम हमारा हो चुका है। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड इट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3 minus 2x plus 3y minus 12 is equals to 0। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा 3y माइनस 2x था, लेकिन मैंने x वाले टर्म को पहले लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस में है। x माइनस वाई, x वाला टर्म पहले है इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, ठीक है। ओके, x माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन विथ 2, सो वी विल गेट 2x माइनस 2y माइनस 12। ओके, मैं इसी में इसको करके लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। माइनस 12। ओके, नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन, सो 2x विल बी कैंसिल आउट, 3y माइनस 2y दैट इज y प्लस y minus 24 is equals to 0, so y is equals to 24। ओके, हमने टाइम को y एज्यूम किया था इसलिए 24 का यूनिट हो जाएगा आवर्स, 24 आवर्स लग रहा है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग द वैल्यू y वैल्यू इन ईदर इक्वेशन एंड इक्वेशन 1 और 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, from the second equation we can say x minus y minus 6 equals to 0 and put the value of y. So x minus 24 minus 6 equal to 0, so x equal to 30। okay, and our speed is 30, that is किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम मीन्स 30 इंटू 24 that is equals to 720 kilometer। this is our final answer। now coming to the next question, that is here, ये आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन गिवन रहेगा, ठीक है। so the question is Anuj has some chocolates and he divided them into two lot A and B। He sold the first lot at ₹2 for 3 chocolates। यूनिटरी मेथड का यूज़ करके हम लोग एक चॉकलेट का प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ से। एंड द सेकेंड लॉट एज ₹1 पर चॉकलेट। यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक चॉकलेट का ₹1 गिवन है। एंड गॉट द टोटल ऑफ ₹400। इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट at a rate of ₹1 per chocolate and second lot ₹4 for 5 chocolates, his total collection would have been 460। अगर इस तरह से ये सोल्ड करता, ₹1 पर चॉकलेट फर्स्ट लॉट को बेचता और ₹4 पर 5 चॉकलेट के लिए बी लॉट को बेचता तो उसको ₹460 का बेनिफिट हो जाता। So this question is also from the linear equation in two variable and we will get two equations and by solving these two equations we will get the answer। So let's see it। lot A और lot B, lot A and B दो lot given है। तो फर्स्ट लॉट को बेचता है कितने में, ₹2 पर 3 चॉकलेट्स, ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स। तो 1 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 चॉकलेट का प्राइस होगा 2/3। ओके, एंड हियर लॉट बी
वन चॉकलेट प्राइस गिवन है डायरेक्टली कितना, 1 रुपीज़। एंड अज्यूम करते हैं हम लोग, लेट लॉट ए हैज़ X chocolates, okay, and lot B has, let lot B has Y chocolates, ठीक है। तो अगर मैं x को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट को एक चॉकलेट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या टोटल प्राइस मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो x इंटू 2/3 ये टोटल प्राइस पता चल गया। और अगर मैं y को इस एक चॉकलेट के प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मुझे इसका लॉट b का टोटल प्राइस पता चल जाएगा, y इंटू 1। और अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये क्वेश्चन में आपका गिवन है कि 400 रुपीज़ वो टोटल कमाई करता है। यहाँ पे देखिए, गॉट टोटल 400 रुपीज़। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन भी करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। that is 2x/3 plus y is equals to 400, and we can say this 2x plus 3y is equals to 1200। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। and the second equation will be, if he had sold the first lot at a rate of 1 rupees per chocolate and second lot at a rate of 4 rupees for 5 chocolate, मीन्स 1 चॉकलेट का कॉस्ट हो जाएगा, 1 चॉकलेट का कॉस्ट होगा 4/5, ओके। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दैट इज़ लॉट ए के लिए 4 रुपीज़ फॉर 5 चॉकलेट्स, मीन्स 1 चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4/5 रुपीज़। एंड लॉट बी के लिए, सॉरी ये लॉट बी के लिए था ना, सॉरी ये लॉट बी के लिए था और ये लॉट ए के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ लॉट बी एंड लॉट ए के लिए था 1 रुपीज़ पर चॉकलेट, है ना। यहाँ पे गिवन है, इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट अ रेट ऑफ 1 रुपीज़ पर चॉकलेट, सो फर्स्ट लॉट के लिए 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ पर चॉकलेट, ओके। सो the total cost will be 4/5x and the total cost, सॉरी 4/5y, ये लॉट बी है और इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1x और वी कैन से x। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है, देखते हैं, 460 रुपीज़। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 460 रुपीज़। सो x प्लस 4/5y is equals to 460. Now solve the equation, 5x plus 4y is equals to 2300. Now this is our second equation. By solving equation 1 and 2 we can easily get the value of x and y. यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, this is our equation first and this is our equation second. So let's solve it. Now by solving these two equations you will get x equals to 300 and y is equals to 200, and the total number of chocolates are x plus y, that is equals to 500। ठीक है, आप इस इक्वेशन को खुद से सॉल्व कर लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। Now again a very simple question from trigonometry and you will get 3 marks by solving it. So this is our question. We need to prove LHS equals to RHS. Now start solving it. So we can write tan cube theta by 1 plus tan square theta means sec square theta plus cot cube theta divided by 1 plus cot square theta means cosec square theta, okay. This is cosec square theta. Now tan cube theta we can write sin cube theta by cos cube theta divided by 1 by cos square theta,
ओके, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया है, एंड कॉट क्यूब थीटा इज कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक कॉस थीटा कट जाएगा, 2, ठीक है, एक ही बचेगा, कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ भी सेम, साइन स्क्वायर थीटा विल कैंसिल आउट एंड 1 साइन थीटा विल रिमेन, एंड नाउ वी कैन राइट इट like this, sin cube theta divided by cos theta plus cos cube theta divided by sin theta। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू cos theta sin theta एंड sin raised to the power 4 theta plus cos raised to the power 4 theta। अब जब भी आपको इस तरह का टर्म दिखे टू द पावर 4, तो इसको स्क्वायरिंग करने का कोशिश करिए, मतलब कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये पूरा, तो इसको ब्रेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, that is sin square theta plus cos square theta whole square माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे है साइन स्क्वायर थीटा और बी के प्लेस पे है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, नाउ वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको सेपरेट करते हैं, मतलब 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, सो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा मीन्स सेक थीटा कॉसेक थीटा। जब ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकेट होकर के, तो ये हो जाएगा कॉसेक सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा एक साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यही हमें प्रूव करना था? यस, यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, वी कैन राइट इट हेयर, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Now what is circumscribing? Let's see the diagram. Okay, so if I draw a parallelogram, okay, and this is our circle, if I draw a circle, so this is our diagram, and circumscribing means all the sides are touching the circle from outside. Okay, now given that ABCD is a parallelogram and we need to prove it is a rhombus. Okay, so if we write it PQRS, okay, so name कर देते हैं इसको PQR and S. So AP is equals to AS because tangent from any point to a same circle are equal. ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं सर्कल का। सो दिस इज इक्वेशन 1, ओके, एंड BP is equals to BQ, this is equation 2 by the same reason. Also CQ is equals to CR, अब मैं इधर से क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि BQ और CQ को ऐड करने पे एक पूरा साइड बन रहा है। तो अगर मैं इधर से अगर CR लिख देता और इधर CQ लिखता तो मेरा बात नहीं बन पाता और सब कुछ सही होते हुए भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है।
और सी आर में क्या ऐड कर सकते हैं, डी आर, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ओके, डी एस। दिस इज आवर इक्वेशन 4. Now add all the equations, that is plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. So AP plus BP plus CR plus DR is equals to AS plus BQ plus CQ plus DS. Now AP plus BP is equals to what? AP plus BP is equals to AB. AB plus CR plus DR, that is equals to CD. Okay, AB plus CD is equals to AS plus DS. AS plus DS, that is equals to AD. And BQ plus CQ is equals to BC plus BC. Now AB and CD are equal because this is parallelogram that is given to us. So we can write AB plus CD is equals to 2AB, क्योंकि AB और CD दोनों इक्वल है. अच्छा, AD एंड BC भी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड से दोनों पैरेललोग्राम का. So AD plus BC is equals to, we can write it 2AD. So 2 will get cancel out and now AB is equals to AD. अब हमें अपोजिट साइड्स इनडायरेक्टली पैरेललोग्राम कह करके इक्वल गिवन था और हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है. दैट इज़ AB इज इक्वल्स टू AD. मतलब AB को और AD को हमने इक्वल प्रूव कर दिया. अब पहले से कितना गिवन था, AB और CD तो पहले गिवन था, AD और BC पहले से गिवन था, बस हमें एडजेसेंट साइड्स को प्रूव करना था इक्वल. और ये हमारा प्रूफ हो गया है रोम्बस. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट हेंस ABCD इज अ रोम्बस. नाउ देयर इज़ एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 30 एज वेल. और करके एक और क्वेश्चन आपको गिवन है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सर्कल चैप्टर. In the given figure, x, y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB of contact C intersecting x, y at A and x dash y dash at B. So we need to find angle AOB, means this angle AOB. इस एंगल को हमें फाइंड करना है. And given that x, y and x dash y dash are two parallel lines and A and B is also a tangent touching the point C. Okay. So we need to construct a line that is join OC. हम OC को join कर देते हैं और हमें दो ट्रायंगल मिल जाएगा. यहाँ से एक ट्रायंगल ये हो जाएगा OPA एंड एक ट्रायंगल हो जाएगा OCA. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और CPCT से इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे. बाय द सेम रीज़न फ्रॉम दिस टू ट्रायंगल्स QBO एंड BOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. उसके बाद इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे. उसके बाद देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन. हम क्या कर रहे हैं, join OC, okay. Now in triangle OPA, okay, OPA and OCA, इस ट्रायंगल में देखेंगे OCA. इन दोनों ही ट्रायंगल में OP is equals to, we can say OP is equals to OC because radii of सेम सर्कल. ठीक है, सेम सर्कल का रेडियस है दोनों. इसके बाद OA इज़ द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल. OA इज इक्वल्स टू OA, दिस इज कॉमन. एंड PA इज इक्वल्स टू AC because tangent from any outer point to a same circle will also be equal.
सो ए पी वी कैन से ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों साइड्स हमारा हो गया है इक्वल। सो बाय द रीज़न ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट पी ए ओ, और कोई भी आप ट्रायंगल लिख सकते हैं, ठीक है। पी ए ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अगर हम पी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सी स्टार्ट करना पड़ेगा, सी ए ओ, सी ए ओ, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Now we can say angle PAO and angle CAO will equal by CPCT. So angle PAO is equals to angle CAO by CPCT. Corresponding parts of congruent triangle जो होता है वो इक्वल होते हैं। मैं इसको इस एंगल्स को नेमिंग कर देता हूँ एंगल 1 एंड 2। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, नाउ सिमिलरली करके हम लोग लिखेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को लेंगे ओ क्यू बी एंड ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को पिक करेंगे, दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन से, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से द ट्रायंगल ओ बी क्यू एंड ओ बी सी, ठीक है। ओ बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। इफ़ आई नेमिंग इट 3 and 4, angle 3 and 4, that is OBQ is 3 and OBC is 4. Now we can say that angle 3 and 4 are equal because CPCT angle 3 is equals to angle 4 by CPCT. Now we have proved angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. And if I add all the angles, means this whole angle and this whole angle, we can see that this angle is co-interior angle, and the co-interior sum of co-interior angles are 180 degree, that is supplementary. So we can say here angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 180 because co-interior एंगल का सम 180 होता है कब, जब दोनों लाइंस पैरेलल गिवन हो, और हमें पहले से क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल गिवन है, और ये एक ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। सो 1 + 2, और 1 + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 या फिर 2 + 2। तो हमें 1 + 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 + 2 लिखना होगा, 2 + 2 प्लस 3 को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 का हमें यूज़ नहीं है, हम लिखेंगे 4 + 4, क्योंकि 3 और 4 दोनों ही इक्वल है, दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ वी कैन से 2 × एंगल 2 प्लस 2 × एंगल 4, दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी कैन से 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। नाउ वी कैन से 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180/2, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देखिए, दिस ट्राइंगल AOB, हमने 2 और 4, द सम ऑफ 2 and 4 इज, वी हैव प्रूव्ड दैट इज सम ऑफ 2 and 4 इज 90 डिग्री। नाउ द रेस्ट ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज द ट्राइंगल angle sum property of a triangle is 180 degree. So now we can say that angle AOB is equals to 90 degree. Okay, ये हमें फाइंड करना था या प्रूव करना था, जो भी है। Okay, what is the measure we need to find here? What is the measure of angle AOB? So we have already measured it. Find it. Angle AOB is equals to 90 degree.